A warm welcome to all children. Today I am going to start with the last chapter in history, that is the making of national movement, that is from 1870s to 1947. Before discussing that, I would like to let you know about the revolt of 1857, in which you have seen that there was various small empires at that time, like Awadh was there, Jhansi was there, Kittur was there. After that, we have Punjab, Marathas, Rajputs, Jats Empire were there, even the small in the Assam states were there, Orissas and all, Hyderabad was there, Mysore was there, Thiruvananthapuram, where you can see in the Kerala states also, the various small kingdoms were there at that time. Okay, so after this, already you have read in this chapter the effects of the British rule. What were the various effects of the British rule? Already I told you, due to the various policies of the Britishers, the peasants were not satisfied, the tribal people were not satisfied because of the various policies they made, which hindered their livelihoods, due to which there were protests from each and every side, even from the middle class people also. They were against the British policies and all. So all these policies and all led to the freedom struggle in India. Now you know what the main reason were: number one, the British conquest of the territories and taking over of the kingdoms. The various policies like subsidiary alliances, I told you, the permanent settlement and all, Ratwari system and all, these are the various policies due to which they conquered the various territories and the various kingdoms of our country. After that, the introduction of the new laws and administrative institutions. These were also the another major reasons for the people to revolt against the Britishers. After that, the changes in the lives of the peasants and tribals due to the various restrictions introduced in the forest laws and the bringing up of the Ryotwari system, the Zamindari system, the permanent settlement, all the peasants were not satisfied with these policies. After that, educational changes were made in the 19th century. Again, modern education was introduced. Education changes in the 19th century. After that, debates regarding the condition of the women also. Women education, abolition of the sati and all. Changes to the caste systems were there. Social and religious reforms were made by them. And the revolt of 1857 and its after effects were there, and the decline of the crafts and growth of industries in our country. You would have seen how they exploited the weavers, the small scale craft person in our countries. So on this basis, we have seen that these issues were the main basis of discontentment among the Indians against the British rule. Now, if so, how were different groups and classes dissatisfied? Now, in this chapter, I am going to deal with how the various groups and classes were dissatisfied. Already we have seen over there. Now, after the defeat of Tipu Sultan, after the defeat of Tipu Sultan, you have seen that most of the South Indian state, Tipu Sultan जो है आपका महाराष्ट्र रीजन में थे, कर्नाटक रीजन में थे, उनकी जब डिफीट हुई तो साउथ इंडिया जो है वॉज नाउ आइदर अंडर द कंपनीज डायरेक्ट रूल और अंडर इट्स इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल. तो साउथ इंडिया अब इनके हाथ में आ चुका था. ठीक है. नाउ इसके बाद क्या हुआ? देयर वॉज एन इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. नाउ जो कुछ भी मैंने आपको बताया, ये जो पॉलिसीज़ में चेंजेस लेके आए, विमेन रिफॉर्म ले आए, एजुकेशन रिफॉर्म ले आए, ये सब जो डेवलपमेंट्स जो आए थे, इससे जो है एक क्रूशियल क्वेश्चन लोगों के सामने स्टार्ट हुआ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ. व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम हुम इट इज़ मेंट? किसके लिए ये इंडिया कंट्री और कौन इसका वो है? तो आंसर जो ग्रेजुअली उसके आया था, इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर, ये सब इंडिया उन्हीं का ही है. एंड द कंट्री, उसके रिसोर्सेज है, उसके सिस्टम्स हैं, वो सब उसी के लिए है. सो विद दिस आंसर द गेम द अवेयरनेस, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आई. ठीक है. क्या अवेयरनेस आई? कि ब्रिटिश जो है दे वर कंट्रोलिंग and exploiting the resources of India, they were exploiting the lives of the people of India, and
जब तक इस कंट्रोल को एंड नहीं करेंगे इंडिया का, तब तक हम इंडियंस नहीं हो सकते हैं। अब लोगों के अंदर ये फीलिंग्स अवेयरनेस क्रिएट हुई, ये कॉन्शियसनेस जो है अब क्लियरली स्टेट हो गया। जब लोगों को ये पता चला, डिफरेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हो गई। पॉलिटिकल एसोसिएशन मीन्स पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे 1850 के बाद। स्पेशली जो है 1870 और 1880s में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था ये डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स में। और इसमें सबसे माना हुआ ग्रुप जिसको कि एक इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स ने लीड किया था, लॉयर्स ने, जिसमें कि पूना सार्वजनिक सभा थी, इंडियन एसोसिएशन, आई विल शो यू ये पूर्ण स्वराजिक सभा, इसमें ये इम्पॉर्टेंट जो है आपकी एसोसिएशन है जो इन्होंने मिल के इसके ऊपर काम किया था। इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महा जनसभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब अबाउट 100 ईयर्स ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंडिया की कंट्रोल कर दी थी। कई इंडियंस अब ये फील करने लगे थे कि ब्रिटिश कंट्रोल को अब ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डिफरेंट, आपको मैंने बता दिया, एसोसिएशन थी, पूर्ण सार्वजनिक सभा। इसका मतलब क्या होता है? सार्वजनिक मीन्स सब लोगों के लिए है। कई और एसोसिएशंस में पार्टिसिपेट किया था। उनका गोल जो है वो क्या था? पीपल ऑफ इंडिया के लिए वर्क करना, एक किसी रीजन या कम्युनिटी के लिए नहीं, टू वर्क फॉर द होल कंट्री। एंड दे वर्क विद द आइडिया दैट पीपल शुड बी सॉवरीन इन आवर कंट्री। अ मॉडरेट कॉन्शियसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म क्या था? सॉवरेनिटी। इन अदर वर्ड्स उनका कहना ये था कि इंडियन पीपल को अब एम्पावर कीजिए इन द डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। नाउ इससे क्या हुआ था? देयर वॉज अ डिससेटिस्फैक्शन विद द ब्रिटिश रूल। अब 1870-1880 में लोग जो है ब्रिटिश रूल के जो उनका पॉलिसीज़ थी उससे डिससेटिस्फाइड थे। स्पेशली एक था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो 1878 में पास हुआ था। आर्म्स एक्ट में क्या होता था कि लोगों को अलाउ नहीं था, ठीक है, आर्म्स को पॉसेस करना, ठीक है। ये देखिए अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन, ये रहा आपका, ठीक है, 1870s में, जिसमें कि आपका देखिए इम्पॉर्टेंट पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस इस पीरियड में फॉर्म हुई थी, ठीक है। द नेमिंग कन्वेंशंस ऑफ दिस पॉलिटिकल एसोसिएशंस बताते हैं कि वो उन इश्यूज़ को उठाना चाहते थे जिससे इंडियन पीपल उनकी पॉलिसीज से अफेक्टेड थे। कई एसोसिएशंस जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री में काम कर रही थी, ठीक है। नाउ व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिससेटिस्फैक्शन? अब क्या कारण थे, कौन कौन से ऐसे कारण थे जो 1870s एंड 1880s में पीपल जो है दे वर डिससेटिस्फाइड? देखो, सबसे पहले आर्म्स एक्ट इन्होंने पास किया था 1878 में, और इस आर्म एक्ट के बदौलत, आर्म एक्ट की वजह से ये जो है इंडियंस को आर्म्स पॉसेस करने के लिए मना करता था। उसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, वो भी 1878 में पास हुआ था। इस एक्ट से जो है गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था कि वो जो है न्यूज़पेपर की जो भी एसेट्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स हैं, इंक्लूडिंग दैट प्रिंटिंग प्रेस ऑल्सो, वो कन्फिस्केट कर सकते हैं, अपने अंडर में ले सकते हैं अगर न्यूज़पेपर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शनेबल न्यूज़ पास करता है। दिस इज़ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। प्रेस माने क्या होता है? न्यूज़पेपर। सो आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1878, और ये एक्ट ने इंडियन को आर्म्स रखने से मना कर दिया था। और गवर्नमेंट ने जो है इल्बर्ट बिल भी पास किया था 1883 में, और इस बिल के अकॉर्डिंग, ये 3 बिल जो है बड़े इम्पॉर्टेंट थे। इस बिल के अकॉर्डिंग क्या था कि ब्रिटिश जो है ट्रायल के लिए, जो ब्रिटिश पीपल हैं या यूरोपियन पीपल हैं, पर्सन्स हैं, वो उनको इंडियन जजेस या इंडियन लॉयर्स ट्राई नहीं करेंगे। इसलिए इल्बर्ट बिल ने कहा था कि देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियन जजेस। ब्रिटिश और इंडियन जजेस को बराबर समझा जाए कंट्री के अंदर। लेकिन वाइट पीपल ने इस बिल के अगेंस्ट जो है दे प्रोटेस्टेड, ड्यू टू विच इस बिल को ब्रिटिश गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। तो ये 3 बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर्म्स एक्ट हो गया, एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हो गया, और एक आपका इल्बर्ट बिल हो गया। ये 3 मेन कारण थे जिसकी वजह से ये नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था।